Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss all the questions of IPC which came in the exam paper of Haryana Judicial Services from the year 2010 to 2021. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही beneficial रहेगा. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. Question number 1 is the meaning of odi altum partum is क्या होता है? Right are associated with the duties या फिर everybody has right to defend himself या फिर everybody should be given a reasonable opportunity to defend himself. Reasonable opportunity of being heard जो है उसको क्या बोलते हैं? odi altum partum. So C is the answer. Next is 4. Conspiracy needs at least person कितने चाहिए? तो conspiracy में 2 ही चाहिए, minimum 2 person. So B is the answer. Section कौन सा है? 120A of IPC. न्यू आईपीसी जो आई है भारतीय न्याय संहिता, वहां पर सेक्शन कहां पर दिया गया है? इन सेक्शन 61. This is 5. The act of unlawfully entering into another's property is known as breach of property, trespass, easement, as cheat. क्या बोलते हैं उसको? Trespass. B is the answer. This is 6. Sexual intercourse with the consent of a girl amounts to rape if she is under कितने years? 15, 16, 17, 18. 18 years. D is the answer. सेक्शन 376 में ही मेंशन किया गया है ये आईपीसी में. इन न्यू आईपीसी दिस इज सेक्शन 63. नेक्स्ट 43. A obtained a sum of rupees 10,000 from B by putting B in fear of death. Which one of the following was committed by A? अब देखिए लिखा है पुटिंग B in fear of death. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टेंट फियर है. अगर डेथ का अगर इंस्टेंट फियर है, मान लो किसी ने चाकू दिखाया या फिर बंदूक दिखा दी तो वो रॉबरी हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? एक्सटोर्शन. डी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? 383 ऑफ आईपीसी. इन न्यू आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन कौन सा है? 308. नेक्स्ट 44. यूज ऑफ वायलेंस बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कंस्टिट्यूट. क्या होता है ये? एफ्रे, असॉल्ट, राइटिंग, अनलॉफुल असेंबली. यूज ऑफ वायलेंस हो गया तो क्या हो गया? राइटिंग हो गया. C is the answer. सेक्शन कौन सा है? 146 इन आईपीसी. न्यू भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 191. नेक्स्ट 45. A sees B drowning but does not save him. B is drowned. A has committed. क्या किया है उसने? क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? उसकी मर्जी है, वो बचाए ना बचाए. नो ऑफेंस. D is the answer. Next 46. A has knocked down 2 teeth of B. A has committed the offense of क्या होगा? This is grievous hurt. A is the answer. और कहाँ मेंशन किया गया? इन सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी. वहां पर लिखा हुआ है ना कि ए बोन और टूथ, मतलब एक दांत भी तोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो अ ग्रीवियस हर्ट. नेक्स्ट 47. Which one of the following statement correctly define the term murder? Act by which death is caused must have been done with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. This is murder. क्या मर्डर हुआ? This is only culpable homicide. But death is caused with the knowledge that he is likely to cause death. This is also culpable homicide. Both are mentioned in section 299. Death is caused with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom injury is caused. मतलब स्पेशल नॉलेज में है उसके. This is murder under section 300. So C is the answer. Death is caused by grave and sudden provocation. This is culpable homicide. It will fall under the exception 1 of section 300. Next is 48. A servant collected money from the debtor of his master as authorized by him. The servant retained the money in his hands, but because it was due to him as wages, he commits क्या किया उसने? उसने किया criminal breach of trust. A is the answer. Because the money was entrusted as an employee, not for his dues, है ना? तो criminal breach of trust हो जाएगा ये. कहाँ मेंशन किया गया criminal breach of trust? इज सेक्शन 305 ऑफ आईपीसी. अब न्यू आईपीसी में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 316.
Next 49. A finds a watch on the floor of a state transport bus while he was leaving it as the last passenger. He picked it up and put it in his pocket instead of returning it to the state transport authorities. Next day he sold it. A is liable for क्या किया उसने? This is criminal misappropriation. C is the answer. Criminal misappropriation is provided where? In section 403 of IPC. In new IPC, this is section 314. Next 50. Under which of the following situations the Indian courts would have jurisdiction? Crime committed by an Indian in a foreign country. बिल्कुल है जी. Crime committed by a foreigner in India. Yes. Crime committed by a person on an Indian ship. This is also there. So all हो गए. D is the answer. Section 2, 3 and 4 का combined effect है ये. अब न्यू आईपीसी में इसको सेक्शन 1 में ही सारा ये डिफाइन कर दिया गया है. नेक्स्ट 51. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेडिशन? सेडिशन जो है अब एट प्रेजेंट इट इज एन अबेयंस बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ एसजी वॉम्बट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना. एंड इन न्यू आईपीसी दिस प्रोविजन हैज बीन डिलीटेड. अभी वहां पर ये प्रोविजन नहीं है सेडिशन का. तो एनीवेज अगर मान लीजिए आज के टाइम अगर आ जाए तो आज के टाइम में अगर ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए सेडिशन पर बिकॉज इट इज ऑलरेडी पुट इन अबेयंस. क्या होता है? वर्ड स्पोकन मस्ट बी कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग exciting defection towards the government. D is the answer. Next 52. Nothing is an offense which is done by a person who is 100-year-old man or 6-year-old boy under 7 years of age. So B is the answer. क्या बोलते हैं इसको? डोली इनकैपेक्स. सेक्शन कौन सा है? 82 ऑफ आईपीसी. अब न्यू आईपीसी में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? अंडर सेक्शन 20. Next is 54. With reference to crime, response the following. It is a state wrong, yes. Civil wrong, no. Private wrong, no. Civil और private wrong क्या होता है फिर? Torts. तो A is the answer. Crime is always a wrong against the state. Crime is a broader word. Offense is a narrower word. Next 55. Actus reus includes positive intentional doing as well as negative intentional non-doing या फिर only positive external body as well as. So A and C are correct. Both. D is the answer. Next is 56. Section 34 IPC creates a substantive offense या फिर is there only a rule of evidence? It is a rule of evidence. B is the answer. Now in new भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5. Next 57. Preparation and attempt are two stages of commission of crime. Preparation is not punishable generally, but attempt is. One basic reason as to why preparation is not punishable is that there is no nexus between preparation and attempt, या फिर can be chances of change of mind before commission of offense. बिल्कुल ठीक है ये. In absence of intention, no. So B is the answer. Next 58. Illegal signifies everything which is an offense या फिर everything which is prohibited by law या फिर which furnishes ground for civil action या फिर all of the above. It is all of the above. D is the answer. Next 59. How many types of punishment have been prescribed under IPC? तो देखिए there are 5 types of punishment. C is the answer. कैसे कौन कौन सी हैं? Death, फिर life imprisonment, फिर imprisonment with रिगरस और सिंपल, फिर forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी एंड फिर फाइन. तो कितनी होगी? ये 2 3 4 5. अब न्यू सीआरपीसी में कितनी हो गई हैं ये? 6. एक ऐड कर दी गई है कम्युनिटी सर्विस. एंड सेक्शन कौन सा हो गया? सेक्शन 4 इन न्यू आईपीसी भारतीय न्याय संहिता. यहाँ पर ओल्ड सेक्शन क्या है? 53 आईपीसी. Next 95. The term offense is defined under dash section of IPC. कौन सेक्शन है ये? सेक्शन है 40. तो C is the answer. अब न्यू आईपीसी में ये कहाँ चला गया है सेक्शन? न्यू आईपीसी में है ये सेक्शन 2 and 24. Next 96. In the IPC, nothing is an offense which is done by a child below age of 7 years. This is called as Dolly Incapax, mentioned in section 82 of old IPC. So 12 year of age, 7 to 12, no. This is Dolly Capax. Below 14, no.
नन ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। अब आप बताइए ज़रा सेक्शन कहाँ पर है ये न्यू आईपीसी में। नेक्स्ट 97 ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन बाय जेड किल वाई जेड चाइल्ड ए इज गिल्टी ऑफ, क्या किया उसने, प्रोवोकेशन तो जेड ने दिया, उसके बच्चे को क्यों मार दिया, दैट इज मर्डर, बी इज द आंसर। एंड दिस इज सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 ग्रेव सडन प्रोवोकेशन एंड इट इज देयर इलस्ट्रेशन ए। अब सेक्शन 300 हो गया है सेक्शन 101, तो वहां पर ये एक्सेप्शन सेम है, इलस्ट्रेशन सेम है। Next 98 under section 376 of IPC, a public servant committing a rape on a woman in his custody shall be punishable with, उसके लिए एटलीस्ट 20 ईयर्स की पनिशमेंट है, तो इसमें नन ऑफ द आंसर है बिकॉज 7, 8, 10 लिखा हुआ है। अब न्यू आईपीसी में सेक्शन हो गया है ये 64। This is 99 a crime under section 399 can be sufficiently attract punishment under IPC at the stage of intention, preparation, attempt, commission। 399 किसके लिए, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, बी इज द आंसर। नाउ अब प्रिपरेशन को जो है सेक्शन 310 डेफिनेशन ऑफ डकैती उस वहीं पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट 100 सेक्शन 511 आईपीसी अप्लाइज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द आईपीसी एनी स्पेशल और लोकल ऑल ऑफ द अबव। इन आईपीसी ए इज द आंसर। अब अटेम्प्ट के प्रोविजंस कहाँ चले गए हैं, इन सेक्शन 62 ऑफ न्यू आईपीसी। Next is 101. Under section 103 of IPC, the right of private defense of property extends to causing death if the offense is mischief per se, mischief में होता है no, theft में no, robbery में हो जाता है तो B is the answer because there is a danger of instant death, B इसका आंसर रहेगा। Now in new IPC जो ये सेक्शन है 103 कहाँ चला गया है, इन सेक्शन 41। Next is 102 Smith versus Desmond is a leading case on, किस पर है ये, it's on criminal conspiracy, D is the answer। Where is criminal conspiracy in IPC, in section 120A, punishment in 120B। Now in new IPC this is section 61। Next is 103 in the Indian Penal Code the offense of criminal breach of trust has been dealt with in section, कहाँ पर है, 405 में, 2 में, 4 में, 1 में, it is in 405, A is the answer। In new IPC, this is section 316। Next is 104. Which of the following offences mens rea is not a requisite? Kidnapping में चाहिए mens rea? No. Robbery में चाहिए? Yes. Trespass में? Yes. Kidnapping में नहीं चाहिए होती because kidnapping per se it is an offence। A is the answer। सेक्शन कौन सा है किडनैपिंग का, सेक्शन 359 से और 361, 3 सेक्शन है। अब इसको एक ही सेक्शन बना दिया गया है न्यू आईपीसी सेक्शन 137। Robbery is in 390, न्यू आईपीसी में है 309। Next 105 if the offender is armed with deadly weapon at the time of attempting डकैती he is liable to be punished with, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, rigorous imprisonment of at least 7 years। बिल्कुल ठीक है, up to 7 no, 5 no, A is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये, दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 398 ऑफ आईपीसी। अब न्यू आईपीसी में कहाँ चला गया सेक्शन, इन सेक्शन 312 ऑफ न्यू आईपीसी, पनिशमेंट सेम है। Next 106 A was attempting to kill a deer in a sanctuary, while doing so the gunshot hit a man who died instantly। A is guilty of, क्या उसने कोई ऑफेंस किया है, नहीं ऑफेंस नहीं किया। देयर माइट बी एन ऑफेंस डेथ बाय नेग्लिजेंस, वो भी नेग्लिजेंस भी वहाँ पर देखनी पड़ेगी। बट देखिए ये जो स्टेटमेंट है इलस्ट्रेशन सी इन सेक्शन 299, वहाँ पर देखिए आप कि भाई झाड़ी के पीछे किसी पक्षी को कोई मार रहा है और वहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वहाँ पर कोई ड्यूटी है उसकी, अगर ड्यूटी टू टेक केयर है, ड्यूटी टू चेक है भाई कोई है या नहीं है, तो वहाँ पर नेग्लिजेंस नहीं होगी, अदरवाइज दिस कुड बी डेथ बाय नेग्लिजेंस। एनीवेज इन दिस क्वेश्चन दिस इज नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। ये यहाँ पर ना तो कल्पेबल होमिसाइड है, ना मर्डर है, ना ग्रीवियस हर्ट है। नेक्स्ट 107 द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट मीन्स, क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट is no excuse, law is excuse, no, A is the answer। Next 108 infancy as an exception has been provided under section, which section it is, in section 82, C is the answer। 80 में क्या है, accident, 81 में necessity, 82 में क्या है, फिर ये डोली इनकपैक्स बोलते हैं इसको, है ना, और 83 में क्या है, डोली कपैक्स, 84 में क्या आ गया, insanity।
इन जनरल एक्सेप्शंस। नाउ जनरल एक्सेप्शंस हैज़ बीन चेंज्ड, है ना। अभी डोली इनकैपेक्स वाला सेक्शन हो गया है सेक्शन 20 इन न्यू आईपीसी। नेक्स्ट 109, इररेसिस्टिबल इम्पल्स इज अ डिफेंस इन इंडिया इन इंग्लैंड, या फिर बोथ या फिर नीदर। नीदर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 110, a better is a person who commits the offense, or who instigates the commission of the offense against whom the offense is committed, या फिर innocent. Who instigates? B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी में। न्यू आईपीसी में सेक्शन कहाँ चला गया है ये, इन सेक्शन 46। नेक्स्ट 111, 10 person were charged for offense under section 302 149 IPC, out of which 6 person were acquitted. The remaining 4 cannot be convicted for the offense under section 302 149, या फिर cannot be for 302, या फिर cannot be convicted for under section 149। देखिए जहाँ पर जो दो धाराएं इकट्ठी लगा दी हैं 302 और 149 की, उसमें से जो है 10 में से 6 जो एक्विट हो गए, तो क्या यहाँ पर ये दोनों इकट्ठी लगेंगी? दोनों इकट्ठी नहीं लग पाएंगी। इसके लिए कन्विक्ट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं जी, इसके लिए भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर अब ये इकट्ठा नहीं रह पाएगा बिकॉज लेस देन 5 पीपल है ना। सो ए इसका आंसर रहेगा। नाउ सेक्शन जो मर्डर का सेक्शन 302 कहाँ चला गया है ये, दिस इज सेक्शन 101। मर्डर इज नाउ डिफाइंड इन सेक्शन 101। पनिशमेंट कहाँ है 103 में। एंड 149 कहाँ चला गया है, इन सेक्शन 190 इन न्यू आईपीसी। Next is 112, in the context of the exception of grave and sudden provocation, which of the following is correct? Provocation should not be voluntary, provoked by the offender. बिल्कुल ठीक है ये। Lawful exercise of right to private defense does not give provocation. This is also correct. Lawful exercise of powers by the public servant in obedience to the law does not amount to provocation. This is also correct. All of the above, D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है, इन सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और उसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है। अब सेक्शन 300 क्या हो गया है, सेक्शन 101 इन न्यू आईपीसी। नेक्स्ट 113, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ, क्या है ये, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लॉ है, या फिर मिक्स क्वेश्चन है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ए इज द आंसर। वहीं पर लिखा हुआ सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 में ही। Next 16, Surjit meets Gopi on a high road, shows a pistol and demands Gopi's purse. Gopi in consequence surrender his purse. Here Surjit has committed, क्या किया कमिट उसने कमिट की है एक्सटोर्शन, डकैती, थेफ्ट या फिर रॉबरी। इट इज रॉबरी, डी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 390 में थेफ्ट, 378 में डकैती, 391 एक्सटोर्शन, 383। ठीक है। अभी न्यू आईपीसी सेक्शन कहाँ चले गए हैं, ये हो गया 309, डकैती हो गया 310। अब इनके सेक्शन जरा आप बताइए, लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 17, एसिड अटैक इज एन ऑफेंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन कौन से में मेंशन है ये, 326 क्या है, ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन, है ना। और उसके बाद कर दिया गया है इसको बाय द अमेंडमेंट सेक्शन 326 ए, सी इज द आंसर। इन न्यू आईपीसी दिस इज सेक्शन 124। Next is 18. Acts against which the right of private defense is not available have been laid down in section, कौन सेक्शन में किया गया है, इन सेक्शन 101 या फिर 100 या फिर 99, इन 99, सी इज द आंसर। अभी सेक्शन कहाँ चले गए हैं, इन न्यू आईपीसी। 99 इज नाउ सेक्शन 37 इन न्यू आईपीसी। नेक्स्ट इन 19, A finds a valuable ring on the road not knowing to whom it belongs. He sells it immediately without making an attempt to find the owner. A is guilty। और देखिए रिपीट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया, 2017, 18 और 16 में भी और 14 में भी पूछा गया था ये। This is dishonest misappropriation of property under section 403 and this is illustration in that section. So B is the answer. Criminal breach of trust का सेक्शन कौन सा है, 405। अब इन न्यू आईपीसी अब हो गया है सेक्शन 314 इन न्यू आईपीसी। 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रीवी काउंसिल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। देखिए 2017 में डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। वहाँ पर केस का नाम बताया था और पूछा था कि किस पर है ये, कॉमन इंटेंशन पर। वहाँ पर मैंने डिस्कस की थी ये चीज़। तो केस कौन सा था ये, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। सो बी इज द आंसर। वीरेंद्र कुमार वर्सेस एम्पर, ये है 34 मतलब कॉमन इंटेंशन पर।
अब कॉमन इंटेंशन को कहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है न्यू आईपीसी में? इट इज नाउ इन सेक्शन 1 itself. Next 35, criminal breach of trust deals with stolen property and trusted property. It is on the entrusted property. B is the answer. प्रोविजन कहाँ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का? इन सेक्शन 405 ऑफ ओल्ड आईपीसी. न्यू आईपीसी में सेक्शन कहाँ चला गया है? इन सेक्शन 316. Next 45, H takes property belonging to S out of the possession of S in good faith, believing that at the time when he takes it, that the property belongs to him. Later on, realizing his mistake, he continues to appropriate the property to his own use. He has committed the offense of, क्या किया है उसने? उसने किया है DMP, dishonest misappropriation of property. यहाँ पर क्या होगा? criminal misappropriation. C is the answer as per section 403 of IPC. न्यू आईपीसी में सेक्शन हो गया ये 314 और ये वहाँ पर इलस्ट्रेशन है. Next 66, A put his hand in pocket of B for stealing money, but the pocket was empty. A is guilty of theft या फिर mischief या फिर attempting to commit theft. Attempt हो जाएगा ये as per section 511 of IPC. न्यू आईपीसी में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? Now this is section 62 in new IPC. Next 67, A beats his wife. She fell down and become unconscious, believing her to be dead and to save himself from being arrested for murder. A hanged her on the fan with rope. Postmortem report disclosed her death from hanging. A is liable for murder या फिर culpable homicide. This is culpable homicide. B is the answer. This is the case of Plani Gondan versus State versus Emperor. मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट थी जहाँ पर ये इसको सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए एंड फॉर कंसीलिंग एविडेंस के लिए पनिश किया गया था. बट दिस इज अ कल्पेबल होमिसाइड. यहाँ पर क्या लगती है? 2 ट्रांजैक्शन थ्योरी. 2 ट्रांजैक्शन हुई जिससे कि सेकेंड ट्रांजैक्शन से उसकी डेथ हो गई. तो क्या बन जाएगा ये? कल्पेबल होमिसाइड. ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस बनेगा इसमें. नेक्स्ट 104, कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस है या फिर नो ऑफेंस अनलेस इलीगल रिजल्ट्स आर देयर या फिर सिविल रॉन्ग या पीस ऑफ एविडेंस ओनली. इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 105, Raju is cutting wood with an axe at the place where children are playing. The axe flies off and kills a nearby child. Raju is liable for murder या culpable homicide, death by negligence. It is a death by negligence. C is the answer. Under section 304 IPC. अब जो है ये सेक्शन कौन सा हो गया है इन न्यू आईपीसी? डेथ बाय नेग्लिजेंस. इन सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 7, X a blacksmith is seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to take his tool and forced him to open a door of Y's house. The dacoits then looted Y's money, jewels and also killed Y's son Z. What offense among the following offenses under IPC has been committed by X? X ने क्या किया है? नो ऑफेंस. कैसे? वो तो बाय फोर्स करवाया है ना उससे. अगर बाय फोर्स मर्डर करवाते हैं, भाई मर्डर करना है तूने, तो वो जो है मर्डर ही होगा, वो नो ऑफेंस नहीं होगा. ध्यान रखना. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 94 एक्सप्लेनेशन 2 इन ओल्ड आईपीसी. न्यू आईपीसी में कहाँ चला गया है ये सेक्शन? In section 32 explanation 2. Next is 8, for constituting an offense of abduction under IPC, the abducted male should be. अब abduction के लिए कितनी एज चाहिए? कोई एज नहीं चाहिए होती उसमें, तो no age. D is the answer. Earlier section was 362 in old IPC. अब new IPC में section कहाँ चला गया है ये? In new IPC this is section 138. Next is 9. How many minimum number of persons are required to constitute the offense of rioting under section 146 IPC? Minimum कितने चाहिए होते हैं unlawful assembly के लिए? 5. B is the answer. अब न्यू सेक्शन कौन सा हो गया है ये? In new IPC this is section 191. Next is 46. Section 73 of IPC prescribe the maximum limit of solitary confinement to be कितना? 1 year, 2 year, 3 months. 3 months. C is the answer. Ditto repeat question in 2018 पेपर. देख लीजिए वीडियो में.
और सोलिटरी कन्फाइनमेंट का सेक्शन कहाँ चला गया है न्यू आईपीसी में? इन सेक्शन 11 ऑफ न्यू आईपीसी। 47, an Indian citizen murders a French citizen in Paris and absconded. He is found by Indian police in Mumbai. He, with the previous sanction of central government, can be prosecuted in India at any place fixed by ministry या फिर New Delhi only, Mumbai, at any place as per the request of the French government? No. Where he is found. So फाउंड कहाँ हुआ है वो? मुंबई में, तो सी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये? इन न्यू आईपीसी। दिस इज इलस्ट्रेशन इन सेक्शन 1। और सेक्शन 3 एंड 4 थे ओल्ड आईपीसी में, उसको जो है सेक्शन 1 में ही कंप्लीट कर दिया गया है। Next is 48. A finds a purse with money not knowing to whom it belongs. He afterward discovers that it belongs to B but retained it for his own use. Under IPC, A is guilty of क्या किया उसने? Dishonest misappropriation of property as per section 403 of IPC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, बी इज दी आंसर। थेफ्ट कितने में? 378 में। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ पर है? इन सेक्शन 405 में। चीटिंग 415 में। अब न्यू आईपीसी डीएमपी कहाँ पर चला गया है? इन सेक्शन 314, और ये वहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है, इलस्ट्रेशन ई। नेक्स्ट 79, जजमेंट इन महबूब शाह वर्सेस एम्परर एक्सप्लेन द पीनल लॉ रिलेटिंग टू, किस पर था ये? दिस वाज डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। डी इज द आंसर। कॉमन इंटेंशन का सेक्शन कहाँ चला गया है अब न्यू आईपीसी में? इन सेक्शन 3। नेक्स्ट इज 80, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइन सेडिशन? सेडिशन कहाँ पर है? नेक्स्ट इज 101, सेल ऑफ एन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ डैश पनिशेबल अंडर सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी। कितनी एज है वो? दैट इज रिटन इन सेक्शन 293। इट इज 20 years. D is the answer. Next is 102, which of the following section of IPC prescribes punishment for cheating? चीटिंग की पनिशमेंट कहाँ प्रोवाइड की गई है? देखिए 415 प्रोवाइड करता है व्हाट इज चीटिंग डेफिनेशन, एंड 416 में क्या है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पनिशमेंट कहाँ है? 417 में। बी इज द आंसर। नई जो भारतीय न्याय संहिता है सेक्शन कहाँ चला गया? ये 318 में। Next is 103, A intending or knowing himself to be likely to permanently disfigure B's face gives B a blow which does not permanently disfigure B's face but which causes B to suffer severe bodily pain for a space of more than 3 weeks. A has voluntarily caused, और देखिए 3 weeks है मतलब 3 into 7 कितना हो गया? 21। 20 days से ऊपर का कोई ऐसा इंजरी की जिससे बॉडी पेन है तो क्या होगा वो? दैट विल बी अ ग्रीवियस हर्ट। सो बी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 320 में। व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, है ना। न्यू आईपीसी में कहाँ चला गया सेक्शन ये? 116 ओ भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज 117, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी मेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन विदाउट हर कंसेंट एज पनिशेबल? दैट इज सेक्शन 376 बी। सो बी इज द आंसर। अब न्यू सेक्शन कौन सा है ये? 67 इन भारतीय न्याय संहिता। Next is 118, A along with his gang members B, C and D holds X down and fraudulently takes Y's money and jewel from X's clothes without his consent. Out of the following, what offense A and his gang member committed under the Indian Penal Code? क्या किया उन्होंने? देखो A B C D कितने हैं? 4 हैं, तो 4 में क्या डकैती होगी? नो, 5 मेंबर चाहिए डकैती के लिए, तो रॉबरी हो जाएगी। B इज द आंसर। अब रॉबरी कहाँ चली गई है? सेक्शन था पहले रॉबरी का आईपीसी में 390, अब न्यू आईपीसी में कहाँ है? सेक्शन 309। डकैती हो गया 310। नेक्स्ट इज 8, यूज ऑफ वायलेंस बाय मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट विल कंस्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ, क्या हो जाएगा वो? रॉइटिंग। बी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा था? इन ओल्ड आईपीसी द सेक्शन वाज 146। अब कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 189 आईपीसी।
Next is 73. The age of consent for sexual intercourse between husband and wife has been made 18 from 15 years by Supreme Court. So D is the answer. Next is 75. The maximum period of solitary confinement provided under Section 73 IPC is कितना है? 1 month, 2 month, 3 month. It is 3 months. C is the answer. Now in new IPC, solitary confinement section कौन सा हो गया है? This is section 11 now in new IPC. Next is 76. If the act is lawful one and not a criminal act, and if in the course of such act any one of the person jointly doing that act commits an offence, then all the person shall be liable under 34, या फिर only the doer of the act shall be liable for it and not others, and section 34 shall not be apply. Yes, this is correct. Nobody shall be liable. No other person except the real doer of the act shall be liable, and 34 apply. 34 apply नहीं होगा. B is the answer. 34 is common intention. Now what is the section of common intention? Common intention is in section 3 subsection 5 of new IPC. Next is 77. Right to private defense is available where there is no time to have recourse to the protection of public authority. This is correct. Available under all circumstances? No. Available when there is a time to have recourse? No. Available under no circumstances? No. None of these were no. A is the answer. Right to private defense in old IPC from section 96 to 106. अब कहाँ चला गया है ये? From 34 to 44 in new IPC. Next 78. Punjab Reorganization Act was enacted in the year. कौन सी ईयर में इनेक्ट हुआ था? In 1966 जब हरियाणा बन गया था. 1 November 1966. Next 79. A act who doesn't understand or distinguish between the right and the wrong is called wholly incapable. This is defined under which section of IPC? In 82. E is the answer. This is quite a common question. 83 में क्या है? Wholly capax. Who have some maturity and understanding. अब कहाँ चले गए हैं ये section? Now 80 is section 20 in new IPC. Next is 80. Section 396 of IPC deals with, किसे डील करता है? Only डकैती एंड मर्डर. डकैती एंड मर्डर. B is the answer. अब इस सेक्शन को जो है हटा दिया गया है न्यू आईपीसी में. डकैती का प्रोविजन कहाँ है न्यू आईपीसी में? इन सेक्शन 310. Next is 81. Which of the following statement is true about malice in law and malice in fact? The former is a wrongful act done intentionally without just cause, whereas the latter is a wrongful act done intentionally with evil motive. ये बिल्कुल ठीक है. The former is a wrongful act done intentionally with evil motive. No, it is vice versa, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. A is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. और देखिए पूछा यहाँ पे लीगल मैक्सिम पूछ ली. एक पर्सोना नॉन ग्राटा. देखिए पर्सोना मतलब पर्सन, नॉन मतलब नॉट, ग्राटा का मतलब क्या होता है? वेलकम करना. ठीक है, पर्सन नॉट वेलकम, तो क्या होगा इसका? पर्सन नॉट वांटेड. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. ए पुलिस ऑफिसर हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 5000 अगेंस्ट द फाइन फ्रॉम अ पर्सन वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी द स्टेट ट्रेजरी ही यूटिलाइज द सेम फॉर हिज पर्सनल यूज. द ऑफेंस अंडर आईपीसी क्या किया उस पुलिस वाले ने? इट इज सीबीटी. किसी ने उसको जो 5000 रुपये उसको इंटरेस्ट किए भाई हाँ, ताकि आप जो है उस पैसे को डाल दीजिए सरकारी खजाने में. ठीक है, लेकिन उसने खुद यूज कर लिया. उसने क्या कर दिया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है. एंड पब्लिक सर्वेंट का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है? नॉर्मल क्रिमिनल ब्रीच है 405 में, पनिशमेंट है 406 में. अगर पब्लिक सर्वेंट वाला है वो है 409 में. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ए हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर्स परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कौन सेक्शन में दिया हुआ है? इट इज मेंशन इन सेक्शन 78. ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. मैंने अपनी वीडियोस में जो डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. एडी में भी पूछा गया था, हरियाणा जुडिशरी में कई बार पूछ चुके हैं, राजस्थान में कई बार पूछ चुके हैं. तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सो याद कर लीजिए, रट लीजिए. 78 इज द आंसर. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. ए बीट्स हिज वाइफ, शी फेल डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शियस, बिलीव हर टू बी डेड एंड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड फॉर मर्डर. ए हैंग्ड हर फ्रॉम द फैन विद अ रोप. पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्क्लोज डेथ बाय हैंगिंग.
A is liable for, क्या होगा, इट इज कल्पेबल होमिसाइड। इस थ्योरी को बोलते हैं टू ट्रांजैक्शन थ्योरी। अगर आपने पढ़ा हो कंसेप्ट इन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड में, तो टू ट्रांजैक्शंस हुई यहाँ पर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, एडी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो बी इज द आंसर। आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं, उसमें ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉर अडॉप्शन द अबडक्टेड पर्सन शुड बी ऑफ एनी एज। अबडक्टेड पर्सन की कोई एज नहीं होती है, ठीक है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। Z is thrown from his horse. Surgeon finds her required to be treatment. A note and 10 is Z's in but in good faith. देखिए जहाँ पर भी गुड फेथ आ गया तो नो ऑफेंस होता है वहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ सकते हैं पूरा, बट इसका आंसर क्या रहेगा, ए कमिटेड नो ऑफेंस। और ये कहाँ पर मेंशन है, इट इज़ मेंशन इन सेक्शन 92 ऑफ IPC। और ये इलस्ट्रेशन है आपका, इलस्ट्रेशन ए ऑफ द सेक्शन 92। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। वोयरिज्म इज पनिशेबल अंडर। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, इन इट केम इन मैनी एग्जाम्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी में है ये, सी आंसर है। नेक्स्ट इज 43। अंडर 82 एंड 83 IPC द ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पनिशेबल, यहाँ नोट नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो कब पनिशेबल होगा, बिलो 7 ईयर ऑफ एज, नो इट इज, इसको क्या बोलते हैं, इसको डोली इनकपैक्स, मतलब चाइल्ड इज इनकैपेबल। अबव 7 ईयर बट बिलो 12 ईयर इफ ही हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होगा, तब भी ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 83 में। अब above 7 year but below 12 year having attained sufficient maturity and understanding, तो C is the answer। अब किसी को कोई चीज़ मिल गई, उसको बच्चे को उस चीज़ की कीमत नहीं पता, उसको मान लीजिए खाना खाना है, वो गया भाई, उसको एक बहुत महंगा पेन मिला, मान लीजिए सोने का पेन मिल गया उसको, ठीक है। किसी का कोई अमीर आदमी गिर गया होगा, अब वो जाता कि भाई इसके बदले मेरे को खाना दे दो, उसने ले लिया, क्या उसने वो क्राइम किया, नो, बिकॉज उसको समझ नहीं है। अब उसको पता है कि भाई ये सोना है, उसको मान लीजिए कहीं सोना मिल गया, उसको पता है सोना है। अब वो कहता है कि भाई ये मेरे को इसके बदले मेरे को पैसे दे दीजिए। वो कहता है हाँ ठीक है 10 रुपये की चीज़ है ये, तो कहता है हाँ 10 रुपये की थोड़ी है, ये इतना महंगा है। तो इसका मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्या होगा, ऑफेंस पनिशेबल। ऑलराइट, सो सी इज द आंसर। 44 है मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विद एनी वन ऑफ द इंटेंट स्पेसिफाइड इन 463। या 463 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या है 463 में, फोर्जरी। सो सी इज द आंसर। और देखिए इसमें ना एक ही ऑप्शन बनता है, बनेगा ही नहीं बाकी। तो मिसचीफ कहाँ पर है, 425 में। फॉल्सिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, 464 में। फोर्जरी है, आप देखिए डी ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, ए एंड सी, मिसचीफ और फोर्जरी तो हो नहीं सकते दोनों। ऑलराइट, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 76 है द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस पे है ये, कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। सो ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता ऑब्वियसली। मिस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ नहीं है, प्रिजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट इज 78 ए वॉलंटरली बर्न ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, क्या किया उसने, मिसचीफ। एंड मिसचीफ कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन आपके सेक्शन 425 में। और जो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ये है आपका इलस्ट्रेशन ए ऑफ 425। ओके, सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 79 पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग ए डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी इज डेल्ट अंडर सेक्शन 166। 164 165 डिलीटेड, रिपील्ड है, ये नहीं है सेक्शन, ठीक है। 167 क्या है, 167 है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू कॉज इंजरी, ठीक है। ये क्लोज थे 166 167, बट 66 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय अनोनिमस कम्युनिकेशन और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील व्हेंस द थ्रेट कम्स is dealt under 507. B is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of IPC which came in the exam paper of Haryana Judicial Services from the year 2010 to 2021. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।